جائیں گے۔ یہ کوئی انقلاب۔ جموں کے فرقہ وارانہ فسادات جن میں مسلمانوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام۔ ہندوستان کی تقسیم کے وقت بنگال اور پنجاب جیسی خون ریزی کی بازگشت واداں کشمیر میں سانائی نہیں دی۔ اگرچہ وادی کشمیر کی 93.7% آبادی مسلمان تھی، مگر مجموعی طور پر یہاں حالات کنٹرول میں رہے، تاہم صوبہ جموں میں حالات وادی کشمیر سے یکسر مختلف تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کے تقسیم کے منصوبہ کے اعلان کے فوراً بعد ہی جموں میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے لگی تھی۔ پونچھ میں مہاراجہ ہری سنگھ کی انتظامیہ کے سابقہ جاگیر کو اپنے براہ راست کنٹرول میں لینے اور کچھ ٹیکس لگانے کے خلاف ایک مقبول غیر فرقہ وارانہ تحریک کی ابتدا ہوئی۔ اس احتجاج سے غلط طریق سے نمٹنے اور مہاراجہ کی انتظامیہ کی طرف سے وحشیانہ طاقت کے استعمال نے جذبات کو بھڑکا دیا اور اس غیر فرقہ وارانہ جدوجہد کو فرقہ وارانہ لڑائی میں بدل دیا۔ مہاراجہ کی انتظامیہ نے نہ صرف تمام مسلمانوں سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، بلکہ ڈوگرا فوج میں بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں اور مسلمان پولیس افسروں کو، جن کی وفاداری پر انہیں شبہ تھا، غیر فعال کر دیا۔ فرقہ وارانہ آگ جموں میں سب سے زیادہ بھڑکی۔ مسلمانوں کے خود کو مسلح کرنے اور بعد میں ہونے والے فرقہ وارانہ قتل عام کو جواز فراہم کرنے کے لیے ہندوؤں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی افواہیں پھیلائی گئیں۔ ستمبر کے آخر تک بشنا، آر ایس پورہ، اکینور وغیرہ کے سرحدی علاقوں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے علاقہ سیالکوٹ کی طرف نقل مکانی کر گئی۔ پڑوسی پنجاب میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات سے سرحدی علاقوں میں مکمل خوف و ہراس پھیل گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق میٹنگ نمبر 534/6 مارچ 1951 ہندوستان میں ہونے والی خوفناک قتل و غارت کے فوراً بعد، جو کہ تقسیم کے ساتھ ہوئی، مہاراجہ نے ایک ایسا عمل شروع کیا جس کے تحت ٹائمز آف لندن کے خصوصی نامہ نگار کی 10 اکتوبر 1948 کے شمارے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بقیہ ڈوگرا علاقہ میں ڈوگرا ریاست کی تمام افواج نے، جن کی سربراہی مہاراجہ نے خود کی، ہندوؤں اور سکھوں کی مدد سے 2,37,000 مسلمانوں کو منظم طریقے سے ختم کر دیا۔ مہاتما گاندھی نے 25 دسمبر 1947 کو جموں کی صورتحال پر تبصرہ کیا تھا۔ سعید نقوی نے اسے ان کی جمع شدہ تحریروں کی جلد 90 سے نقل کیا ہے۔ جموں کے ہندوؤں اور سکھوں اور باہر سے آنے والوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کشمیر کا مہاراجہ ہے۔ مسلم خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ مہاراجہ کے بھمبر کے دورہ کے بعد پونچھ کے کچھ علاقوں جیسے پلندری، باغ اور سدھنوتی میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، جن کے بعد ایسے فوجیوں جنہوں نے برطانوی ہندوستانی فوج میں شمولیت اختیار کی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں خدمات انجام دی تھیں، نے مہاراجہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ ان ہلاکتوں نے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں بھارت اور پاکستان کی دو نئی آزاد اقوام کے درمیان جنگ بھی شامل ہے، جس نے تنازع کشمیر کو جنم دیا۔ جموں ہلاکتوں کے 5 دن بعد پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبہ اب خیبر پختونخوا سے قبائلی ملیشیا، جہاں جموں کے بہت سے مسلمانوں کے خاندانی تعلقات تھے، نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی قبائلیوں کی فوج کشمیر کی طرف بڑھی، ڈوگرا فوج جموں کی طرف بھاگ گئی۔ ہری سنگھ نے نئی دہلی کے ساتھ الحاق کے دستاویز پر دستخط کیے، جس نے قبائلیوں سے لڑنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ قبائلیوں اور بھارتی فوج کے درمیان کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی لڑائی بالآخر پہلی پاک بھارت جنگ کا باعث بنی۔ جب نئی دہلی اور اسلام آباد نے جنوری 1948 میں جنگ بندی پر اتفاق کیا تو ریاست جموں اور کشمیر دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہو گئے۔ دونوں اطراف کے کشمیری ان ہلاکتوں کی یاد 6 نومبر کو مناتے ہیں۔ آج 6 ستمبر ہے۔
27 बरस पहले एक छोटी मगर खुददार कौम ने साबित किया कि जदीद असलहा और फौजी बरतरी ही नहीं बल्कि इत्तेहाद, जुर्रत, अपने मकसद पर यकीन मुहकम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बे हैं जो किसी भी जंग में कामयाबी और सरफराजी का सबब बनते हैं। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तानी अफवाज की फतह ने भारतीय काबिज फौजों से बरसरे पैकार कश्मीरी मुसलमानों के जज्बे को एक नया हौसला बख्शा और उन्होंने वादी में आजादी की जद्दोजहद तेज तर कर दी। भारतीय फौज ने मुजाहिदीन के हमलों में अपनी नाकामी से बौखलाकर आजाद कश्मीर पर अचानक हमला करके कारगिल और टीटवाल की चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने तमाम अखलाकी और बैनुल अक़वामी उसूलों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान के इलाके अवान शरीफ को शरंगेज गोलाबारी का निशाना बनाया। अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने में हक बजानिब था। आजाद कश्मीर की अफवाज ने पाक अफवाज के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई की कि आजादी के मतवाले अपनी धरती के एक एक जर्रे की हिफाजत करना जानते हैं। 1 सितंबर को मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर में आगे बढ़ रहे थे। छम, देवा और कसराना की सरसब्ज वादियां उनके कदमों तले थीं। ये वो कदम हैं जो एक मर्तबा अपनी मंजिल की जानिब उठ जाएं तो कोई ताकत इनकी राह नहीं रोक सकती। सिर्फ एक दिन में अल्लाह के सिपाही दरियाए तवी के किनारे पहुंच गए। तवी के दूसरी तरफ पल्लावाला, चक भगवान, कलेट और टरोटी आजाद फौजों को खुशामदेद कहने के मुंतजिर थे। फिर 5 सितंबर को इन इलाकों के अलावा छम को भी आजाद करा लिया गया। अब मुजाहिदीन की अगली मंजिल अखनूर थी। पाक फौज की जोड़ियां की तरफ पेशकदमी करते हुए भारतीय फौज से पहली बड़ी झड़प टरोटी के मुकाम पर हुई। लेकिन पसपाई कुफ्र का मुकद्दर थी। अब जोड़ियां भी पाक फौज के कब्जे में है। जोड़ियां से भागते हुए दुश्मन 20 टैंक चालू हालत में और इतनी तोपें अपने पीछे छोड़ गया जो 2 रेजिमेंटों की जरूरियात के लिए काफी थी।
उधर दुश्मन के लिए कश्मीर के महाज पर आजाद फौजों को रोकना मुहाल हो रहा था। उसको सारा मकबूजा कश्मीर हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ। अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी मिटाने और मुजाहिदीन की तवज्जो बांटने के लिए भारत ने 6 सितंबर को अलह-सुबह बगैर ऐलान जंग किए मक्कारी से पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद उबूर कर ली। भारत ने लाहौर पर हमला कर दिया। उसकी पैदल फौज के 2 डिवीजन भारी गोलाबारी की आड़ में बीआरबी नहर के किनारे तक पहुंच गए। कौम सो रही थी, लेकिन पाक सरहदों की निगहबान आंखें जाग रही थी। वतन के सिपाहियों के लिए अपनी वफाओं का अहद पूरा करने का वक्त आ गया था। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हर बच्चा, जवान, बूढ़ा सर से कफन बांधे अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना दुश्मन के मुकाबिल था। खालिद और तारिक की रिवायात के अमीन, हैदर किर्रार के वारिस आज फिर कुफ्र के मुकाबिल थे। उनका तन मन धन अपने देश पर कुर्बान था। अब हर सिपाही एक नाकाबिले शिकस्त फसील था जिसने दुश्मन की पेशकदमी रोक दी थी। पाक फौज के जवान तादाद में दुश्मन से कम थे, लेकिन उनके साथ कुव्वत थी सच्चाई की, सरमाया था ईमान का, अज़्म था अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने का। लाहौर में सिर्फ एक कंपनी ने 9 घंटे तक दुश्मन के पूरे एक ब्रिगेड को रोके रखा। लाहौर के जिमखाने में ऐशो इशरत की महफिल सजाने के ख्वाब देखने वाले भारतीय कमांडर अपनी 3 डिवीजन फौज के बावजूद बीआरबी नहर पार न कर सके। वो लाहौर का सेक्टर हो या कसूर का महाज, पाकिस्तानी कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार थी जिसे टकराकर दुश्मन की फौजी कुव्वत पाश पाश हो गई और पाकिस्तानी जांबाज जंग को दुश्मन के इलाके के अंदर ले गए। कसूर के महाज पर भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और पाक अफवाज खेम करन को फतह करती हुई आगे बढ़ती रही। असल अत्तर, चीमा, महमूदपुर और वल्टोहा अब पाक फौज के कब्जे में थे। दुश्मन बड़ी तादाद में जंगी सामान छोड़कर पसपा हो चुका था।
अभी लाहौर पर हमले को 24 घंटे भी पूरे न हुए थे कि दुश्मन ने 500 टैंकों और 50,000 फौज से सियालकोट पर हमला कर दिया। चोवेंडा के मैदान में इंसान ने फौलादी टैंकों के मुकाबले में जो तारीख लिखी, वो हमेशा सच्चे जज्बों की फतह का सबूत बनकर चमकती रहेगी। जब मकसद सिर्फ हक के परचम की सरबलंदी हो तो अपने रब से जान के बदले जन्नत खरीद लेना कोई महंगा सौदा तो नहीं। सियालकोट के महाज पर भी कुव्वत ईमानी अस्करी कुव्वत पर गालिब रही और यहां भी दुश्मन का ख्वाब पूरा ना हो सका। चोवेंडा के मैदान में जज्बों ने फौलाद को पिघला दिया। हक एक बार फिर जीत गया। दुश्मन जब मादरे वतन की इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाए तो धरती के बेटों की गैरत पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता है। 6 सितंबर के सूरज की सुर्खी अभी कायम थी कि सुलेमान की सेक्टर के कमांडर ने दुश्मन की पेशकदमी का इंतजार किए बगैर आगे बढ़कर दुश्मन पर कारी जरब लगाने का फैसला कर लिया। उसे सुलेमान की हेडवर्क्स को दुश्मन से महफूज रखना था ताकि मुल्क की नहरें रवां रहें, खेत सैराब रहें और देश सरसब्ज रहे। अल्लाह के फजल से न सिर्फ हेडवर्क्स दुश्मन की पहुंच से महफूज रहा, बल्कि जब जंग खत्म हुई तो दुश्मन के इलाके में 40 मुरब्बा मील तक का रकबा पाक फौज के जेरे नगी था। भारतीय फजाओं में 18 साल बाद एक बार फिर मस्जिदों से तकबीर की आवाज गूंजी। 8 सितंबर 1965 को दुश्मन ने एक और महाज खोल दिया, जुनूब में थर पारकर का महाज। उसका ख्याल था कि पाकिस्तान की अफवाज को कश्मीर से सिंध तक तकरीबन 1,500 मील लंबी सरहद पर फैलाकर कमजोर किया जा सकता है। लेकिन यहां तो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही नहीं, पूरी कौम दुश्मन के मुकाबले में सीना सिपर थी। गदरों की चौकी पर भारत के कब्जे के बाद पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई का प्लान तैयार किया और फौज के साथ लड़ने के लिए 1000 रजाकारों की खिदमत की दरखास्त की गई। जवाबन
50,000 हुर सर पर कफन बांधे देश की हिफाजत के लिए हाजिर थे। थर पार करके तपते सहराओं में दलेरी के वो बाप रकम हुए जो आजादी के मतवालों के दिलों को हमेशा गरमाते रहेंगे। हैदराबाद पर कब्जे की सोच लेकर आगे बढ़ने वालों को अपने बड़े इलाके से हाथ धोना पड़े। अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं। मोनाबाव के रेलवे स्टेशन पर सब्ज हिलाली परचम अपनी पूरी शान और शौकत से लहरा रहा था। उससे और आगे किशनगढ़ का कला पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और हुरों के सामने सरनेगू था। अपनी इनायत रखे, तेरी जुर्रत तेरी अजमत को सलामत रखे। जज्बाए शौक शहादत की दुआ पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं। वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं, अपनी जान नज़र करूं, अपनी जान नज़र करूं। तूने दुश्मन को जला डाला है, शोला बन के उभरा हर काम पे तू फतह का नारा बन के। इस शुजाअत का तुझे क्या मैं सिला पेश करूं। इस सेक्टर में भी 1200 मुरब्बा मील से ज्यादा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। आज के दौर में फजाई बर्तरी के बगैर जंग जीतना नामुमकिन है। जमीन पर पाक अफवाज की पेशकदमी और मौसर दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाक फजाइया अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ हर महाज पर मौजूद थी। सहरास्त के दरियास्त, तहे बालो परे मास्त। पाक फजाइया का दुश्मन से पहला सामना छम के महाज पर हुआ। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की क़यादत में पाक शाहीनों ने भारत के 4 वैम्पायर तैयारे मार गिराए। ये आगाज था उस हुक्मरानी का जो आने वाले दिनों में पाक फजाइया का मुकद्दर ठहरी। फजाओं की बुलंदियां हो या जमीन की वसतों में छुपे हुए दुश्मन के ठिकाने, कोई भी पाक शाहीनों की उकाबी निगाहों से दूर नहीं। फजाई झड़पों में बर्तरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पठानकोट, आदमपुर, जामनगर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर ठीक ठीक निशाने लगाकर
दुश्मन की फजाई कुव्वत को मफलूज करके रख दिया। पाक फजाइया के हवाबाजों ने सेबर जैसे तैयारों पर वो कारनामे कर दिखाए जो फजाई जंग की तारीख में मिसाल बन गए। MM आलम ने एक ही फिजाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 17 दिनों की जंग में उन्होंने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया, जिसके एतराफ में उन्हें 2 बार सितारे जुर्रत के एजाज से नवाजा गया। PAF ने मजबूरी तौर पर 35 तैयारों को फजाई मार्कों में और 43 तैयारों को जमीन पर तबाह किया। दुश्मन के 32 तैयारा शिकन तोपों का निशाना बने। इस तरह भारत के कुल 110 तैयारे तबाह हुए और 19 को शदीद नुकसान पहुंचा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ 19 तैयारों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जमीनी और फजाई बरतरी हासिल करने के साथ साथ पाकिस्तान की तीसरी कुव्वत बहरिया ने भी अपने से कई गुना बड़ी बहरी ताकत का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। पाकिस्तान नेवी ने दिफाई जंग लड़ने की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उसका पहला हदफ द्वारका था। 7 सितंबर की शाम को जब पाकिस्तानी बहरिया के जहाजों ने कराची से पौने 200 मील दूर अपनी मंजिल की तरफ सफर शुरू किया तो बिखरा हुआ बहरे अरब भी अपनी पुरशोर मौजें समेट कर उनके रास्ते से हट गया। गाजियों का ये काफिला निस्फ शब को अपनी मंजिल पर पहुंच गया। जवानों के हाथ तोपों तक पहुंची और 100 से ज्यादा तोपों के दहानों ने दुश्मन पर गोले उगलना शुरू कर दिए। दुश्मन के साहिली तोपखाने ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जल्द ही सर्द पड़ गया। द्वारका का ताकतवर बहरी अड्डा तबाह हो गया। समुद्री जंग में भी पाकिस्तान को बरतरी हासिल हो गई। 12 घंटे से भी कम वक्त में ये मिशन मुकम्मल करके पाकिस्तानी बेड़ा वापस आ गया। बंबई भारतीय बहरिया का हेडक्वार्टर था, लेकिन उसे सिर्फ एक पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने पूरी जंग के दौरान मुहासरे में लिए रखा। पाकिस्तान ने 17 रोजा जंग जीत ली, क्योंकि पाकिस्तान हक पर था, क्योंकि फौजी जवानों के शाना बशाना पूरी कौम सीना से पर थी। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दामात की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय साम्राज्य मुसलसल करता चला आ रहा है। इसका आगाज मई के महीने से हुआ, जब उन्होंने जंग बंदी लाइन को तोड़ा और कारगिल के इलाके में 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर हिंदुस्तानियों ने आर्जी तौर पर इन चौकियों को खाली कर दिया था, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदुस्तानियों ने इन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानियों ने अपनी जारहाना सरगर्मी को जारी रखा और बढ़ते बढ़ते टिटवाल के इलाके में भी हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी कुव्वत और जंगी साजो सामान के साथ उड़ी और पुल के इलाके की तरफ बढ़ गए। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस ज़ब्त और तहम्मुल से काम लिया, उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। हिंदुस्तानी हमले को रोकने के लिए आजाद कश्मीर की अफवाज को बिम्बर के इलाके की तरफ मजबूरन बढ़ना पड़ा। हिंदुस्तान ने अपने हवाई बेड़े को भी इस जंग में बेदरेग धकेल दिया और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस वक्त तक तमाम दुनिया पर जाहिर हो गया था कि कश्मीर में हिंदुस्तानी जारहियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। आज उन्होंने इसका आखिरी सबूत भी दे दिया है और अपने उन नापाक इरादों का भरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू ही से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं।
انہوں نے چین کا ہوا معاذ اس لیے کھڑا کیا کہ وہ مغربی ممالک سے زیادہ افواج فوجی امداد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بھارتی حکمرانوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور وہ ان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ شاید ہندوستان پوری طرح مسلح ہو جانے کے بعد چین سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہم شروع ہی سے یہ جان گئے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ اب جبکہ ہندوستانی حکمرانوں نے اپنی روایتی منافقت اور بزدلی سے کام لیتے ہوئے باقاعدہ اعلان جنگ کے لیے بغیر اپنی فوجوں کو پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان کے حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ ہندوستانی حکمرانوں کے ناپاک سامراجی منصوبوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔